चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था अबाउट न्यूट्रिएंट्स। देन हम पहले न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, एनिमेटेड वीडियो। उसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, and stay alive. It gives us energy to work and play. It makes us strong and protects us from diseases. The food that we eat contains substances that help our body to grow and stay healthy. These substances are known as nutrients. The nutrients present in food items are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. Carbohydrates. Carbohydrates give energy to our body. Food items like fruits, vegetables, bread, idli, sugar, and cereals contain carbohydrates. Food items rich in carbohydrates are known as energy-giving foods. People who do a lot of physical work, like laborers and farmers, should consume food rich in carbohydrates. Proteins. Proteins help us to grow. They also build muscles and repair damaged parts of our body. Food items like milk, egg, meat, fish, curd, cheese, nuts, beans, and pulses contain proteins. Food items rich in proteins are known as body-building foods. Growing children need proteins as they are still growing. Fats. Fats give us more energy than carbohydrates. They also keep our body warm. Food items like oil, ghee, butter, and nuts are rich in fats. Food items rich in fats are also known as energy-giving foods. Our body needs very little fat. Extra fat is stored in our body
for future use. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals help us to stay fit and healthy. They protect us from diseases. Food items like fruits, vegetables, milk, eggs, and meat are rich in vitamins and minerals. Food items rich in vitamins and minerals are known as protective foods. Our body needs vitamins and minerals in small amounts. Vitamin A, B, C, and D are examples of vitamins. Vitamin A keeps our eyes and skin healthy. Papaya, carrot, and leafy vegetables are rich in vitamin A. Vitamin D helps build strong bones and teeth. Milk and butter are rich in vitamin D. Calcium, iodine, sodium, and iron are examples of minerals. Food items like milk, cheese, curd, paneer, and almonds are rich in calcium. Iron helps in the formation of blood. Food items like green leafy vegetables, carrot, beetroot, apple, and meat are rich in iron. Water and roughage. Water is essential for our body to stay healthy and function properly. Water also helps in the digestion of food. Therefore, we must drink 6 to 8 glasses of water every day. Roughage is the fiber present in our food. It cannot be digested by our body, but it helps to remove undigested food from our body. It is important for the proper functioning of our digestive system. Whole grains, brown rice, fruits, and vegetables are rich in roughage. Balanced diet. The food that we eat is called our diet. A diet that has all the nutrients in right amounts is called a balanced diet. All the food we eat can be divided into 3 food groups: energy-giving foods, carbohydrates and fats, bodybuilding foods, proteins, protective foods, vitamins and minerals. We should eat variety of food items daily from each food group to stay healthy. आई होप आपको इस वीडियो को देख के न्यूट्रिएंट्स के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स क्या होते हैं
न्यूट्रिएंट कैसे हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज है. हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट्स. हमने कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स स्टडी किए हैं? 5 टाइप के. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. चलिए इसमें देखते हैं. प्रोटीन ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है. कार्बोहाइड्रेट इट इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट्स. व्हीट, व्हीट मींस होता है गेहूं. क्या ये एक न्यूट्रिएंट होता है? नहीं. विटामिन न्यूट्रिएंट्स है. यस, विटामिन इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हीट. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? ये भी हमने स्टडी किया था. कौन बनाता है? न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है. प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. आयरन हमारी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और कैल्शियम क्या करता है? बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो आवर आंसर इज कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी. हमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कि हमें एनर्जी कौन देता है. तो जब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया था तो हमने क्या स्टडी किया था कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो दोनों हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. ओके, तो हम इसमें से देखेंगे फैट या कार्बोहाइड्रेट हमारे आंसर में अगर कहीं अवेलेबल है. ये देखिए फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो एनर्जी गिविंग में हमें क्या देना है आंसर में? कार्बोहाइड्रेट इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज what helps to remove undigested food from our body. हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में, थ्रू आउट करने में कौन हमारी हेल्प करता है? प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है. विटामिन भी जरूरी है. फैट भी हमें एनर्जी देता है. तो जो ये रफेज है ये हमारी किस चीज में हेल्प करता है? ये ऐसा हमारे फूड में प्रेजेंट फाइबर होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है. बट ये हमारी अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. एंड ये हमें किससे मिलता है? फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से. ओके, तो आंसर इज रफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिजर्विंग फूड विद ऑयल एंड साल्ट. हम जब प्रिजर्व को लॉन्ग टाइम के लिए, फूड को जब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम उस प्रोसेस या मेथड को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन या प्रिजर्विंग. ओके, तो उसमें जब हम फूड को ऑयल एंड साल्ट के साथ में प्रिजर्व करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग. ओके, ड्राइंग में हम फूड को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं. कैनिंग में हम उन्हें वैक्यूम टाइप कैंस और बॉटल में, यानी उसमें फूड में जो भी एयर प्रेजेंट होती है पहले हीट करते हैं उसे, और उसकी जो एयर है वो थ्रो आउट करके उसे बाहर निकाल के एयर को हम उसे कैन या बॉटल्स में उनकी पैकिंग करते हैं. एंड रेफ्रिजरेटर में हम सम डेज के लिए फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. लेकिन ऑयल और हीट के साथ, ऑयल एंड साल्ट के साथ जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उस मेथड को हम पिकलिंग कहते हैं. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक. अब ब्लैंक्स में देखेंगे. एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज मेक आर स्ट्रॉन्ग. किस चीज को हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी क्या स्ट्रॉन्ग होती है? तो हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है एक्सरसाइज करने से. ओके, ड्राइंग ऑफ फूड आइटम टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. फूड को ड्राई करके प्रिजर्व करना, उसको सुखाकर लंबे टाइम तक जब हम प्रिजर्व करते हैं तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फूड में प्रेजेंट जो वाटर होता है उसे हम सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं. तो जब वाटर को ड्राई करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज food is kept in a refrigerator to preserve it for some days. जब हमें कुछ दिनों के लिए फूड को प्रिजर्व करके रखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ. स्पॉइल्ड फूड आइटम मैंने बताया था ऐसा खराब फूड जो हमारी हेल्थ के लिए अनफिट है. ओके, जिसको खाने से हम बीमार हो सकते हैं. तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसा होगा? गुड या बैड? कैसा होगा? बैड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रापेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड. हम जो फूड ईट करते हैं उसमें जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसे हम रापेज बोलते हैं. तो रापेज क्या है? एक तरह का फाइबर है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग. हमें क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें किन सोर्सेस से मिलता है? कहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट, अगर हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कौन से ऐसे 2 फूड आइटम्स हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट गेट कर सकते हैं? तो दैट इज ब्रेड एंड इडली. इसके अलावा भी और कई फूड आइटम्स हैं लेकिन यहाँ हम 2 सोर्सेज में ब्रेड, इडली हमने टाइप किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 एग्जांपल ऑफ मिनरल. हमारी बॉडी को
मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन। तो हम 2 एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम एंड आयोडीन लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 2 एग्जांपल्स ऑफ विटामिन। अब हमें विटामिन के एग्जांपल्स देने हैं, तो विटामिन भी हमने स्टडी किया था, विटामिन ए, बी, सी, डी, कई विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, हमें हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स में विटामिन ए एंड बी। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, एंड विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के विटामिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये भी हमने जब चैप्टर स्टडी किया था तो हमने ये भी रीड किया था कि 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड वन इज फैट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। तो 2 ही न्यूट्रिएंट्स हैं एनर्जी गिविंग फूड में, तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा फैट। नाउ 3 फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स के नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने स्टडी किया था कि न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप्स हैं। एंड प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी मसल्स को बिल्ड अप करने में हेल्प करता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में हम प्रोटीन को रखेंगे। एंड थर्ड ग्रुप इज प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप, तो ये इसमें हम विटामिन एंड मिनरल्स को रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये हम अभी जब बुक का पीडीएफ स्टडी करेंगे तब आपको इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो आप स्पेलिंग्स रीड करके डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लाइक पनीर, ब्रेड, अनियन, पोटैटो, राइस, मैंगो, बटर, एग, मिल्क। तो ये सब फूड आइटम्स के नेम हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द वेजिटेबल दैट यू कैन ईट। हमें ईट रॉ मीन्स हम बिना कुक किए जिन फूड को कच्चा ही खा सकते हैं, उन फूड आइटम्स को हमें वेजिटेबल्स को यहाँ पे सर्कल करना है। तो कुकुम्बर ये हम एज अ सैलेड खाते हैं, रेडिश, मूली एंड कैरेट। ओके, तो इन फूड आइटम्स को हम रॉ ईट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट इन आवर डेली फूड। हम जो डेली फूड आइटम ईट करते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं? मिल्क से बने हुए आइटम, जैसे कि कर्ड है, पनीर है, ये सब किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं। तो जो मिल्क प्रोडक्ट हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट कोई भी आपको 2 फेस्टिवल के नेम लिखने हैं और उसमें हम जो स्वीट डिश ईट करते हैं उनके नेम लिखने हैं। तो फेस्टिवल नेम इज होली, हम होली पे क्या बनाते हैं? गुजिया। एंड नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस, क्रिसमस पे हम क्या बेक करते हैं? केक। ओके, नाउ कम टू आवर नोटबुक पीडीएफ। ओके, अब अपने आपके पास सबके पास ये पीडीएफ पहुंच चुका है। अपनी अपनी नोटबुक से आप वर्क जहां आपने किया है ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या लिखे हैं? डिक्टेशन वर्ड। डिक्टेशन वर्ड में हम ऐसे वर्ड फाइंड आउट करते हैं जो हमें हमारे लिए न्यू है, जो जिससे हमें नॉलेज मिलता है, और हमारे जो क्वेश्चन आंसर जब हम स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसमें भी ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मीन्स जो बॉडी बिल्डिंग हमारा जो फूड ग्रुप है। एसेंशियल मीन्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं। वेट मीन्स आपके वेट की बात हो रही है, भार की बात हो रही है। ओके, रोस्टिंग, फूड को रोस्ट करना, उसको हम भूनकर जब पकाते हैं, ये फूड को कुक करने का एक मेथड है। रेफ्रिजरेशन भी फूड को प्रिजर्व करने का एक मेथड है। ड्राइंग इज आल्सो मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। एक्सरसाइज इट्स एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। देन सीरियल्स, सीरियल्स होते हैं अनाज। ओके, लाइक व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या है? मक्का, गेहूं, चावल, ये सब सीरियल्स हैं। फंक्शन जो भी हमारा बॉडी है वो वर्क करती है, या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जो वर्क करते हैं। बैलेंस डाइट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, ऐसी डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है। ओके,
नेक्स्ट प्रिजर्वेशन, फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखना प्रिजर्वेशन में आता है। डिहाइड्रेशन, फूड को जब हम वाटर ड्राई कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। नाउ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस होते हैं पदार्थ जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज हेल्दी, हमारी बॉडी की हेल्थ से रिलेटेड है, ये हेल्थ से बना है वर्ड हेल्दी। एंड फॉर्मेशन, डाइजेशन, पाचन हमने स्टडी किया है। फूड को जब हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकिंग डाउन करते हैं। स्टीमिंग, भाप में फूड को पकाना। स्पॉइल्ड मीन्स फूड दैट इज अनफिट फॉर आवर हेल्थ। एंड बॉटलिंग, ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है जिसमें हम फूड को बॉटल्स में प्रिजर्व करते हैं। नाउ लेट्स कम टू डिफाइन। Define में first is nutrients. What is nutrients? Substance present in our food that help our body to grow and stay healthy are called nutrients. ऐसे substance, ऐसे पदार्थ जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमने स्टडी किए थे? सब बच्चे मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यस। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, इक्वल अमाउंट में। हम सेम टाइप का फूड खाएंगे तो हमें और सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे हमारी बॉडी को, तो हमें वैरायटी ऑफ फूड ईट करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें ईच फूड ग्रुप से हम डिफरेंट काइंड का जो फूड आइटम है वो ईट करेंगे ताकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में, राइट अमाउंट में मिल सके। तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, नाउ fill in the blank. एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये हम अपनी बुक में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फूड को जब हम ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। ओके, एंड अगर हमें सम डेज के लिए फूड को स्टोर करके रखना है तो हम किसका यूज करेंगे? रेफ्रिजरेटर का। यस। नाउ स्पॉइल्ड फूड आइटम जो है हमारी हेल्थ के लिए कैसे होते हैं? बैड। राफेज इज द फाइबर। राफेज क्या होता है? एक तरह का फाइबर होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। नाउ ट्रू फॉल्स, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड है वो हमें वर्क एंड प्ले करने के लिए एनर्जी देता है। यस, हमने जब चैप्टर रीड किया था तो हमने रीड किया था कि हमारी बॉडी को वर्क एंड प्ले करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। तो इसमें हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड इडली आर एनर्जी गिविंग फूड। तो ये भी जब हमने हमारे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी किया था, then we can study that carbohydrate give us energy, and उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स है? ब्रेड एंड इडली, ये हमें एनर्जी देते हैं क्योंकि इसमें इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर फैट as they are still growing. अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको ग्रो करने के लिए फैट चाहिए होता है। बताइए, अब जब हमने स्टडी किया था हमारा चैप्टर तो हमें फैट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये फैट हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए एंड हमारी जो बॉडी के डैमेज्ड पार्ट हैं उनको रिपेयर करने के लिए कौन हमारी हेल्प करता है? प्रोटीन। यस, इसलिए हमने प्रोटीन को किसमें रखा है? बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में रखे हैं। तो ग्रो करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? प्रोटीन की, नॉट फैट। तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैट्स गिव लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्या जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी देता है हमें? नहीं। हमने जब स्टडी किया था तो क्या पढ़ा था कि जो टू न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो जो फैट है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मोर एनर्जी देता है, ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि फैट गिव लेस एनर्जी, फैट कम एनर्जी देते हैं, जो कि क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। Next is fruit and vegetables are rich in vitamins and minerals. The fruit and vegetables minerals and vitamin rich food होते हैं? Yes, होते हैं। और वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं?
डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें किसमें इंक्लूड करते हैं, कौन से फूड ग्रुप में, प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन 1 इज व्हाट मेक्स आवर बोन एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमारी बोन्स एंड टीथ को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? तो आवर आंसर इज कैल्शियम. कैल्शियम हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है. ओके, व्हाट हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड जो फूड है, कल हमने जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जब हम फूड ईट करते हैं उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से जितना भी हमारी बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट है उस वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाता था, रिमूव हो जाता था, उसे हम बाहर निकाल देते हैं. तो उसमें कौन हमारी हेल्प करता है? दैट इज राफेज. जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करते हैं उसमें फाइबर होता है. ओके, तो राफेज क्या है? फाइबर है जो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, हमारी बॉडी से. Which nutrient give more energy than carbohydrate? ये भी आप सबको अच्छे से लर्न हो चुका है. कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है? तो आवर आंसर इज फैट. फैट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nutrient help to build muscles and repair damaged parts of our body? मसल्स को रिपेयर करने में, मसल्स को बिल्डअप करने में एंड जो हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने में कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी हेल्प करता है? प्रोटीन. एंड प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में इंक्लूड करते हैं. ओके, विच इज अ कंप्लीट फूड. एक ऐसा फूड जो जिसे हम कंप्लीट फूड कह सकते हैं, तो वो क्या है? मिल्क. ये भी हमने डिस्कस किया था. क्यों कहते हैं हम मिल्क को कंप्लीट फूड? क्योंकि मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. Will contain protein, carbohydrates, fat, vitamins and minerals. ये all जो nutrients हैं उनको contain करता है, इसलिए milk को हम क्या मानते हैं? We consider milk as a complete food. Now name them. Proteins are also known as. protein को हम और क्या इस name से बुला सकते हैं? That is body building food. Fiber present in our body is known as. फाइबर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसे हम रापेज. फूड आइटम रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऐसे फूड आइटम जो विटामिन्स एंड मिनरल रिच है, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड. सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी आर नॉन एज. ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की ग्रो में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. प्रिजर्विंग फूड आइटम विद ऑयल एंड सॉल्ट के साथ जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं पिकलिंग. Name the following. Two sources of carbohydrate. Carbohydrate sources बताने हमें कहाँ से मिलता है? That is rice and potato. Next is two example of minerals. That is calcium and iron. Next question is two example of vitamins. Vitamins के two examples हमें देने हैं, तो vitamin A and vitamin B. Three food groups, ये भी आप सबको पता है already. Energy giving food, body building food group and protective food group. Two sources of protein. Protein हम कहाँ से get कर सकते हैं? That is milk and cheese. Now let's come to question answer. Why do we need food? हमें food की need क्यों होती है? तो आपको ये read करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना अच्छे से अब learn हो जाना चाहिए कि हमें food की need क्यों है. हमारी growth के लिए हमें food चाहिए होता है, healthy रहने के लिए हमें food चाहिए होता है, ताकि हम जितनी भी different activities हैं वो हम energy मिलती है हमें food से, ताकि हम different kind की activity कर सकें. food हमें growth में help करता है, food हमें diseases से protect करता है, इसलिए हमें food की need है. What are nutrients? Nutrients क्या होते हैं? ऐसे substances जो हमारे food में present होते हैं and that help us to grow our body and stay healthy. Healthy रहने में and growth में हमारी help करते हैं. What is a balanced diet? Balanced diet क्या होती है? ऐसी diet जिसमें all the nutrients are present in right amount. That is called a balanced diet. Next question is why should we include राफेज in our food diet? हमें क्यों इंक्लूड करना चाहिए राफेज को अपनी डाइट में? Then राफेज is the fiber. राफेज क्या होता है? फाइबर होता है present in our food which helps to remove undigested food को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है हमारी. ओके,
एंड हमारी बॉडी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर वर्क कर पाता है। एंड होल ग्रेन सैलेड इनमें राफेज प्रेजेंट होता है। वाई आर फूड आइटम प्रिजर्व, हमें फूड आइटम को क्यों हम प्रिजर्व करते हैं, और 2 मेथड्स हमें बताने हैं यहाँ पे। ओके, तो क्यों हम फूड आइटम को प्रिजर्व करते हैं? टू प्रिजर्व फूड आइटम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। अगर हम थ्रू आउट द ईयर, जैसे हम पिकल या अचार खाना चाहते हैं, तो हम थ्रू आउट द ईयर वो जो पिकल है खराब नहीं हो, हम उसे स्टोर करके रख सकें, तो हम इसलिए फूड का जो प्रिजर्वेशन है वो करते हैं। ओके, 2 methods हैं, drying and refrigeration. Now, why are carbohydrates and protein are important our body? Carbohydrate and protein क्यों important है? Because carbohydrate क्या देते हैं हमें? Energy देते हैं. Okay? इसकी वजह से हम physical work जो है हमारे वो कंप्लीट कर पाते हैं, एंड प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्डअप करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट हैं उनको रिपेयर करता है। ओके, तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको प्रोटीन रिच जो फूड आइटम्स हैं वो ईट करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड क्या है? तो ऐसा फूड जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। फूड आइटम दैट हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। उसमें हम विटामिन्स एंड मिनरल को इंक्लूड करते हैं, एंड ये डिजीजेस से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फूड कुक्ड? हम फूड को कुक क्यों करते हैं? क्यों? बिकॉज कुक करने से क्या होता है, हम सारे जो फूड आइटम्स हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम रॉ ईट नहीं कर सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो उसे सॉफ्ट करने के लिए एंड इजी टू डाइजेस्ट, एंड जब हम उस फूड को कुक करते हैं तो उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो उससे उसका टेस्ट भी इंक्रीज होता है। तो फूड को सॉफ्ट करने के लिए, इजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी बनाने के लिए हम फूड को कुक करते हैं। एंड कुकिंग से क्या होता है, फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो भी किल हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। ओके, लेकिन हमें ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड में हमने स्टडी किया था, स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, दीज आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। नाउ आवर चैप्टर 2 इज कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। Now, our next chapter, chapter number 3, we will discuss in our next class. So,